ट्रांजिस्टर क्या है? हमने आपको होमवर्क दिया था कि बिफोर स्टार्टिंग इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर we should have the knowledge about the diode as well as transistor. So now we become the expert of the diode, the emission diode. Now what is transistor? Transistor क्या होता है? जंक्शन एंड टू टर्मिनल से सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। टू जंक्शन होते हैं टर्मिनल से। आप बताओ तो नहीं what is transistor? Repeat. जैसे you had the name transistor, very clear. Those were the words we had. Transistor. Transistor is a combination of two words: transfer plus resistance. Right? Transfer and resistance. Resistance of transfer known as resistance. Okay? Resistance का जो ट्रांसफर है, the transfer of resistance is known as transistor. So you can say transistor is a device in which the transfer of resistance takes place. अब बात आती है कि how the resistance is transferred in the NP transistor or NPN transistor. How this transfer can take place in the transistor. कैसे? What is the meaning of transfer of resistance? In what manner this resistance, any resistance, is being transferred in a device? किसी भी डिवाइस में जो रेजिस्टेंस है वो किस मैनर में ट्रांसफर होगा? What do you think about that? Simple सी बात, high, low and low to high. Right? Resistance you can classify in two ways: high resistance and low resistance. ठीक है? Either resistance is being transferred from the high to low or low to high. In the case of the transistor, the resistance is transferred from low to high. Clear? The resistance is being transferred from its low value to high value. Clear? So आप ये भी डेफिनेशन बना सकते हो कि ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस इन विच इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। ये भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। एक पॉइंट निकल आया है कि ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस हैविंग लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर? दो डेफिनेशन निकल आई है। फर्स्ट डेफिनेशन, combination of two words, transfer resistance. This combination makes a device. ये जो function है, this function make a device which known as transistor. ठीक है? Secondly, this device having the transfer of resistance from low to high. Clear? तीसरा पॉइंट क्या निकलेगा? If transfer of the resistance is being taken place from low value to high value, what is the new feature of that device? अगर किसी डिवाइस में रेजिस्टेंस लो वैल्यू से हाई वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है, यानी इनपुट में लो रेजिस्टेंस है, आउटपुट में हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो उस डिवाइस का अनदर फंक्शन क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन. It means the device is work as an amplifier. It amplifies the weak signal to strong signal, high signal. तो ये भी आप बोल सकते हो कि ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस हैविंग एम्प्लीफिकेशन फंक्शन और ट्रांजिस्टर
amplify the weak signal to strong signal या high signal. क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिस्टर. आप जानते हो when it was invented and who invented it. ट्रांजिस्टर की शुरुआत कब हुई और किसने की? हमने आपको पहले भी बताया था कि द स्टडी ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द हिस्ट्री ऑफ द साइंस. तो अगर इसकी बात करते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिस्टर, हु इन्वेंटेड, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, कुछ आइडिया है? किसी फिजिसिस्ट का नाम याद है आपको जो ट्रांजिस्टर के चैप्टर में सुना होगा नाम आपने? नाम सुना? Shapley and Badi. These are the three physicists who invented transistor. और ध्यान रखना, कोई भी डिवाइस जब भी इन्वेंट हुई फिजिक्स में, the scientist, the physicist is not properly working from that device. कोई भी आप डिस्कवरी उठा के देख लीजिए, दिमाग में, साइंटिस्ट के दिमाग में, फिजिसिस्ट के दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट था, एंड सडनली दे डिस्कवर्ड another device. Same for them. कि ये तीनों साइंस फिजिसिस्ट से अमेरिका की जो बेल लेबोरेटरी थी वहाँ वर्क कर रहे थे, they are doing on the different topics. Suddenly he found the new concept. Actually they are working on the effect of the field on the semiconductor. PNX डायोड की स्टडी हो चुकी थी और they are working कि how the conductivity, how semiconductor work when field is applied. तो effect of the field on the semiconductor. इस concept पे they are working, they are studying, and suddenly he found this new concept, the transfer of resistor. Now the field, they are working on the effect of field. Now he found the working of the current, the effect of the current on the device. They found the new device which is controlled by the current. The device is now controlled by the current. Effect of the field means the voltage control. जो भी कोई डिवाइस है, अगर उस पर फील्ड का इफेक्ट है, दैट डिवाइस नोन एज द कंट्रोलिंग ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस. ठीक है, दे आर स्टडीइंग, दे आर वर्किंग ऑन दैट डिवाइस which device, how the device is controlled by the electric field or voltage. But he found another new concept. He found the device, he found the concept how current can control the device. So this current control device now has named transistor. वहां से ट्रांजिस्टर की शुरुआत हुई. तभी से so much applications, so much industrial applications, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में आ गए. राइट? उसके पहले we are using the vacuum tubes, and after the transistors, these are the solid state device, so they are wide applications. We have the wide application of these transistors in electronics as well as in computers. ठीक है, आप जैसे जानते हो कि हमारे दिमाग में कितनी सेल्स होती हैं? How many cells? No counting, 100 billions, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स. ठीक है, तो सेम फॉर द कंप्यूटर. कंप्यूटर में ब्रेन सेल्स होती हैं कितनी? बिलियंस. तो दीज आर द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर्स. राइट? क्लियर? सो हिस्ट्री समझ आ गई कि ट्रांजिस्टर क्या है, किसने उसका आविष्कार किया, हु इन्वेंटेड, और कब हुआ है, और किस कॉन्सेप्ट का डिस्कवरी हुई. सो यू थॉट आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द हिस्ट्री कि किस तरह का डिवोशन था साइंटिस्ट के साथ. वो डिवोशन चाहिए आज. राइट? उस डिवोशन से अगर आप उनकी स्टडी ही पढ़ोगे, यू बिकम ए ग्रेट फिजिसिस्ट.
एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, फिजिसिस्ट भी बन सकते हो, एक वैज्ञानिक बन सकते हो, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट साइंटिस्ट, कैसे वो काम कर रहे थे, कैसे उनका डिवोशन था, हाउ वाज दे स्पेंड देयर लाइफ फॉर दिस स्टडी। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। क्योंकि आप जब उस कॉन्सेप्ट को सोचोगे कि वो कैसे काम कर रहे होंगे, ठीक है, दिन और रात एक कर देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 24 घंटे लैब के अंदर है, ना खाने की चिंता, ना पानी की चिंता, कोई चिंता नहीं, केवल फोकस ऑन द स्टडी, फोकस ऑन द डिस्कवरी, फोकस ऑन द रिसर्च, तब जाके कोई चीज़ हमारे सामने आती है। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं दिस इज नॉट द सिंपल वे ऑफ द इन्वेंशन। बहुत मेहनत थी, बहुत डिवोशन था, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने अपना इसमें इन्वेस्ट किया, गुजारा, तब जाके हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं आपके हाथ में, आपके सामने जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब हमारे सामने है ड्यू टू द डिवोशन ऑफ दीज साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट, राइट। तो जब भी स्टडी करो उनके डिवोशन को याद करो, तब आपको और अच्छे से स्टडी होगी, ठीक है, कि आप आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले लोगों को भी कुछ दे पाओ। सो ट्रांजिस्टर समझ आया, ठीक है। तो आप डेफिनेशन बना सकते हो व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can amplify the weak signal to high signal, having the transfer of resistance. The device is now able to transfer the low resistance to high resistance from input to output. Second term, the transistor is also current control device. This is the current control device. इसको अगर हम दूसरी तरह से बोले, switch, the transistor can work as a switch, right? तो अगर हम इसको एक नए तरीके से डिफाइन करें, if we defining the transistor in a new way, what we say? Now we have the device which is able to control current. How the device can be controlled by the current? This is the new feature of the transistor. Okay. How much amount of current be required? किसी भी डिवाइस में हमें जब ये कंडीशंस फॉलो करनी हो कि हाउ मच करंट यू हैव रिक्वायर्ड, कितनी करंट आपको जरूरत है, कितनी करंट जरूरत नहीं है, यू हैव टू लिमिट योर करंट, दैट ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस इन दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, बिकॉज इट्स कंट्रोल द करंट फ्लो थ्रू इट। इस डिवाइस की स्पेशलिटी ये है कि ये अपने अंदर जो करंट फ्लो होती है उसको करंट कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द ट्रांजिस्टर। So not one, they have the so many unique feature of the transistor, ठीक है। एक क्रांति आ गई थी, एक बहुत बड़ा वहाँ पर कह सकते हो कि हिस्टोरिकल इन्वेंशन था इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई थी, कम्युनिकेशन भी आसान हो गया था, इंफॉर्मेशन आईटी में भी बहुत काफ़ी एप्लीकेशन आ गए थे कंप्यूटर में, सो समझ आ गया ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कि ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है, ओके, यू नो। अगर हम बताते हैं ना, किसी बच्चे के बारे में बताते हैं कि इसका नाम ये है और ये है, फिर दिमाग में आता है उसका चेहरा कैसा होगा, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, कैसा दिखता होगा ट्रांजिस्टर? आपने देखा यू हैव सम इंट्रोडक्शन, वर्ड इंट्रोडक्शन, शब्दों के रूप में हम लोगों ने डिफाइन किया है ट्रांजिस्टर को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। And now I am asking that you sketch the picture of the transistor. क्या सोचोगे कैसे बना होगा? चलिए हम और 2-3 पॉइंट्स बता देते हैं। ट्रांजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 p-n जंक्शन। पहला पॉइंट हम आपको कुछ हिंट दे रहे हैं फॉर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द p-n ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम इसके पहले आपको बता दें, ट्रांजिस्टर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वे, P and P and these are the types of the transistor, P and P transistor and NPN transistor, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ हिंट्स टू ड्रॉ योर डायग्राम ऑफ द PNP transistor and NPN transistor। Transistor is a combination of 2 p-n junction parallel, पहला पॉइंट क्लियर।
When two p-n junction diode are connected back to back, PNP transistor is formed. NPN transistor is formed. तीसरा point, whenever n semiconductor is sandwiched between two p-type crystal, PNP transistor is formed. And whenever p-type crystal is sandwiched between two n-type crystal, NPN transistor is formed. तीन हमने आपको पॉइंट्स बताए. And now with the help of these 3 points, draw the diagram of PNP और NPN transistor. बनाइए. कैसा बनेगा? We have these lots of information. चौथा point. It is 3 terminal device. Transistor is a 3 terminal device. Clear? 4 points हो गए. चारों पॉइंट्स की हेल्प से अब आप बना सकते हो P and P. For simplicity, first we are taking P and P. What is P? Stupid. P junction. Semiconductor. Semiconductor. हाँ, देखिए P and P are the semiconductors. Semiconductors हमने दो बहुत पॉपुलर सेमीकंडक्टर्स हैं. क्या नाम उनके? डायोड का था, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. So this is NPN. क्लियर? आप देख रहे हैं, दिस इज PN जंक्शन, दिस इज NP जंक्शन. दो डायोड हैं, PN डायोड, NP डायोड. क्लियर? पहली लाइन क्लियर हो चुकी. इट हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड, PN and P. राइट? दूसरी डेफिनेशन क्या थी? दूसरा पॉइंट लिखा है जो 2 PN जंक्शन डायोड आर कनेक्टेड बैक टू बैक. PN जंक्शन डायोड ये है, दूसरा ये है, तो बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया. यानी P और NP को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया, यानी P and P. ये बन गया. क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या था? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? Whenever n-type material, n-type semiconductor is sandwiched between 2 p-type or p-type material is sandwiched between 2 n-type, PNP and PN is formed. Clear? चौथा. It is a 3 terminal device. एक तो हमने इलेक्ट्रोड यहाँ जोड़ दिया, एक हमने इलेक्ट्रोड तीसरा कहाँ करेंगे? यहाँ पर. अच्छा, अभी तो हमें यहाँ पर ये हमें जंक्शन बनाना पड़ेगा P और NP. चलिए, तो ये एक जंक्शन ये बना दिया है और दूसरा जंक्शन हमने ये बना दिया. क्लियर? पहला कौन सा था? PN. दिस PN. ठीक है. और फिर N के बाद कौन सा जंक्शन था? NP. यानी दिस इज जंक्शन 1 and this is junction 2. कुछ ऐसा दिखेगा. If we follow word to word of the definition, the PN junction diode, sorry, PNP transistor looks like this. One PN junction, another NP junction, both are joined back to back. One is sandwiched between other 3 electrodes. Clear? एक्चुअल में कैसा दिखता है ट्रांजिस्टर? तुम देखा है? देखा ना? गुड. कैसा दिखता है?
क्या ऐसा दिखता है? नहीं। तीनों टर्मिनल एक ही साइड होते हैं। एक्चुअल ट्रांजिस्टर होता है और उसमें तीन तीनों होते हैं। टर्मिनल एक ही साइड होते हैं। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है फिजिक्स में। आपके पास अगर थियोरिटिकल नॉलेज भी है और यू हैव नॉट प्रैक्टिकल नॉलेज, सो द स्टडी इज इनकम्प्लीट, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मस्ट है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू बिकम मास्टर, यू आर डूइंग द एमएससी, राइट? यू आर नाउ मास्टर ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, मास्टर को जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नातक? यूजी, यूजी कहते हैं ना, बीएससी को बोलते हैं यूजी, एमएससी बोलते हैं पीजी, मास्टर। हिंदी बोलते हैं स्नातक और परास्नातक। आप भौतिक विज्ञान से, यू आर नाउ ग्रेजुएट इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान से स्नातक हो चुके हो। इट मीन्स फिजिक्स से आप नहा चुके हो, फिजिक्स से नहा चुके हो। ठीक है, नाउ यू आर परास्नातक, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, यानी आप भौतिकी से परास्नातक की तैयारी में हो, यानी अब आप भौतिकी में डुबकी लगा रहे हो। फिजिक्स से आप नहा चुके हो, नाउ यू आर एंटरिंग इन द रिवर ऑफ फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं मास्टर डिग्री, परास्नातक। तो आप समझिए कि जब आप डुबकी लगा रहे हो फिजिक्स में, तो आप कुछ लेके ही निकलोगे। ठीक है, अगर आप कुछ लेके निकलोगे, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ एज वेल एज फॉर रिसर्च वर्क। यहाँ से रिसर्च वर्क स्टार्ट हो। एमएससी में आपने डुबकी लगा दी, और डुबकी के बाद आप जो कॉन्सेप्ट लेके निकलोगे, वो मोदी आपको काम करेगा रिसर्च में, काम आएगा रिसर्च में। ठीक है, समझना है कि मतलब पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, डुबकी लगा रहे हो, समझना इस बात को। फिजिक्स में डुबकी लगा रहे हो, इसका मतलब जानते हो कि आपके आसपास पूरी फिजिक्स ही है, पूरी तरह से फिजिक्स आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, डायग्राम समझ आ गया? पी एंड पी। हाँ, दूसरा एक पॉइंट बताइए कि जब भी हम इस तरह का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, 3 कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिमेंबर। 3 चीजें हमको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज एमीटर, पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं एमीटर। सेकंड पार्ट बेस, एंड थर्ड पार्ट इज अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, जैसा कि नाम है उसी हिसाब से इस ब्लॉक डायग्राम का साइज भी होगा। एमीटर, बेस, कलेक्टर, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो किसका साइज ज्यादा होगा? किस? कलेक्टर। तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, वी मेक द लार्ज पोर्शन फॉर द सी। ध्यान रखना डायग्राम बनाते समय, इतनी ये हालांकि छोटी चीज़ है, बट एक एक्चुअल एग्जामिनर होगा, वो चेक करेगा कि हाउ यू स्केच योर डायग्राम, आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया कैसे है। क्योंकि आप डायग्राम बनाते समय फिजिक्स आपके दिमाग में था कि नहीं, कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि नहीं। सो द कलेक्टर रीजन मस्ट बी लार्जर देन द एमीटर रीजन, एंड बेस रीजन इज वेरी थिन, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आप देखेंगे बेस रीजन बहुत थिन बनेगा, एमीटर से ज़्यादा होगा कलेक्टर का रीजन। इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, कलेक्टर रीजन ज़्यादा बड़ा, उससे छोटा एमीटर रीजन, सबसे छोटा यानी थिन रीजन होगा बेस। ठीक है, समझ आ गया? 3 टर्मिनल, इसको हम नाम दे देंगे एमीटर टर्मिनल, इसको दे देंगे बेस टर्मिनल, और इसको बोल देंगे कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, जैसा कि इनका नाम है एमीटर टर्मिनल, उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग होगी, जैसा नाम वैसा काम। एमीटर टर्मिनल का क्या काम होगा? करंट को देना। और क्लियर बताओ? एमीटर, हिंदी बोलेंगे तो सर्जक, एमीटर।
which emits emitter है which emits क्या करेगा electrons यानी here we have the source of the electron as well O यानी इसको और क्लियर बोले और स्पेसिफिक बात करें the source of the charge अगर हमारे पास NPN हो गया तो इलेक्ट्रॉन की जगह PNP में क्या होते हैं मेजॉरिटी होल्स होते हैं NPN में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं so the common word the common definition the common representation of E is what E is terminal which emits the charge current the source of the charge current clear what is B base इसका क्या काम होना चाहिए what should be the working of B it provides the base for the conduction ठीक है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स जो चार्ज कैरियर्स ई से एमिट होंगे वो इस बेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जाएंगे सो इट प्रोवाइड द बेस प्रॉपर बेस का क्या मतलब होता है कंट्रोलिंग किसी भी कॉन्सेप्ट का अगर बेस है उस बेस का यहाँ मेन पॉइंट क्या होगा कंट्रोलिंग पावर सो दिस इज नाउ द कंट्रोलिंग रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर हम बोला था ना कि ट्रांजिस्टर की एबिलिटी है टू कंट्रोल द करंट्स कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा हाउ कंट्रोलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय दिस रीजन बेस ठीक है इसको नाम दिया गया बेस राइट थर्ड वन इज कलेक्टर कलेक्टर्स आप जानते हो पुराने समय में कलेक्टर्स आप क्या जानते हो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको वो लोग कलेक्टर बोलते थे संग्राहक सो यहाँ पर सी का क्या काम होगा कलेक्ट करना किसको कलेक्ट करना इलेक्ट्रॉन को यानी जो होल्स जो यहाँ से चढ़े थे उनको यहाँ पर कलेक्ट करना ठीक है सो जितने भी चार्ज कैरियर्स यहाँ से शुरू हो गए कंट्रोलिंग थ्रू दिस बी दे आर कलेक्टेड एट सी ठीक है तो तीनों टर्मिनल आपको समझ आ गए एमिटर टर्मिनल बेस टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल जैसा कि नाम वैसा उनका फंक्शन क्लियर और सोचिए और क्या पढ़ सकते हैं सोचो और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये और इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम को देख के बताओ कि विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स हमने नहीं दिखाया चलिए दिखा दीजिए पी में आप होल्स दिखा दीजिए और एन इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए पी में होल्स एन इलेक्ट्रॉन्स में होल्स और डिप्लीशन लेयर चलिए आप दिमाग में रखिए कि हम जंक्शंस पढ़ चुके हैं यहाँ डिप्लीशन भी बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि डोपिंग इज डिफरेंट टू दिस सेमीकंडक्टर्स ई एंड पी में जो डोपिंग होगी वो डिफर भी सेम नहीं होगी विच पार्ट इज मोर डोप्ड कौन सा पार्ट ज़्यादा डोप्ड होगा एमिटर क्यों because it is the emitter it provides the electrons holes for the conduction so emitter part is highly doped then C clear अब हम बात करते हैं सिंबल सिंबल समझते ना कि ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे होगा कैसे बनेगा क्या है What is this? सर्कल सर्कल की सर्किल सर्कल क्या पता होगा क्या है ये क्या होती है ये है सिंबल सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर हमने नहीं बोला
सिंबल ऑफ पीएनपी और एनपी। वैसे सर्कल का क्या काम होता है? कोई काम ही नहीं, इसका बनाओ नहीं, हाँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। नहीं भी बनाओ तब भी चलेगा। बिल्कुल यही दिमाग ला रहा है, यही सोच ला रहा है, ठीक है। दिस ओनली वाज अ प्रेजेंटेशन। आपने एक्चुअल किए हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हो, इज योर चॉइस एंड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दिस। आपको यही तो सोचना है कि व्हाई वी फॉलो दिस डायग्राम, वी कैन मेक अवर न्यू डायग्राम फॉलोइंग द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, नॉट फॉलो द कन्वेंशनल डायग्राम जो किताबों में बना चला आ रहा वर्षों से, हम उसी को बनाए, नहीं बना सकते। हाँ, यू हैव टू मेक एम्प्टी टर्मिनल, यू हैव टू मेक कलेक्टर टर्मिनल एंड यू हैव टू मेक बेस टर्मिनल। तीनों टर्मिनल को आपको ध्यान में रखना है। इन टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए आप डायग्राम बना सकते हैं। जरूरी है हमें सर्किल भी लेना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी डायग्राम चूज कर सकते हो, बट सर्किल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक, इसलिए हम सर्किल बना देते हैं। आप चाहो तो उसको भी शिफ्ट दे दें, लेकिन टर्मिनल आपके 3 होना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ ध्यान की क्या करते हैं, ये तीनों टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि तीनों टर्मिनल मिल रहे हैं, जबकि यह डायग्राम में आप देखो 3 टर्मिनल्स आर सेपरेटेड, तीनों टर्मिनल अलग अलग है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए जब सिंबल बनाएंगे तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी सेपरेटेड, तीनों अलग अलग होना चाहिए। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर हम कहें कि नाउ मेक द सिंबल ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर, व्हाट शुड बी, यानी करंट की डायरेक्शन को अगर यहाँ बना दें, so now it becomes the symbol of PNP transistor, ठीक है। अगर हम सिंबल आउटवर्ड बना दें, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ बना दें, तो ये कहलाएगा NPN transistor, symbol of NPN transistor. So by identifying the inward row and outward row, you can identify कि किस ट्रांजिस्टर का आउट सिंबल बना हुआ है। इट इज फॉर एनपीएन और पीएन। आपने सिंबल की स्टडी कर ली है, टर्मिनल की स्टडी कर ली है, ब्लॉक डायग्राम भी देख लिया है, एंड व्हाट इज ट्रांजिस्टर ये भी कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे और क्या जानना है, सोचिए। वर्किंग, वर्किंग के पहले हमें क्या और पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, you want to know about the operation working of any device, one should have the knowledge before knowing that. उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी डिवाइस की वर्किंग जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और कंस्ट्रक्शन में पढ़ लिया है, कौन सी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, प्रिंसिपल, किस तरह से कनेक्शंस होते हैं, हाउ कनेक्शंस मेड फॉर दिस ट्रांजिस्टर। देखो इजी नहीं है, 3 टर्मिनल है, हाउ यू कनेक्ट है। अभी तक हमने केवल फॉरवर्ड बायस पढ़ा है, रिवर्स बायस पढ़ा है, इसके बाद सीधा ट्रांजिस्टर आ गया है, 3 टर्मिनल आ गए हमारे पास सीधे। अभी तक हमने 2 टर्मिनल को जोड़ के स्टडी की थी, कैथोड इलेक्ट्रोड यानी एन और पी, और हमारे सामने एक ऐसी डिवाइस आ गई विच इज नाउ कनेक्टेड बाय 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल है, उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एक तो आप देख रहे हैं, इसी डायग्राम को देख रहे हो, एक रीजन आपका ये हो गया। मोस्ट प्रॉब्लम रीजन क्या हो सकते हैं, कैन बी हाउ मेनी मोस्ट प्रॉब्लम रीजन। एक तो ये रीजन हो गया, एक ये रीजन, ठीक है। और कौन सा रीजन हो सकता है, तीसरा ये रीजन भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात कर रहा है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, यू आर नॉट एक्सपर्ट इन फिजिक्स, यू जस्ट टेल मी, केवल एक पूछोगे सर ये तो 3 रीजन हो सकते हैं ना, आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रीजन हो सकता है, यानी इन 2 टर्मिनल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन चाहे समझदारी को चाहे बेवकूफ़ी को, क्वेश्चन हैव द इम्पोर्टेंस। डजंट मीन कि वो क्वेश्चन आपका समझदारी वाला है कि बेवकूफ़ी वाला है, क्वेश्चन ही अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि सब
हम ई से बी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बी को हम सी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और ई को सी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें मना तो किसी ने नहीं किया, मैं कैसे कनेक्ट कर मना तो नहीं किया ना। यही सिचुएशन उन फिजिसिस्ट के सामने भी आया होगा who invented this। 3 तरह के टर्मिनल, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनके अंदर कॉमन सेंस होगा, उन्होंने तुरंत समझ लिया होगा कि किन किन टर्मिनल्स को हम जोड़ें और किन को नहीं जोड़ें। तो सपोज यू आर इन दी डुबकी स्टेज, डुबकी लगा दो, ठीक है। अब आप उस स्टेज पर अपने आप को पाकर टेल मी कि वी हैव द 3 मोस्ट कॉमन कनेक्शंस ई बी बी सी एंड सी ई। इन तीनों में अगर हम कनेक्शंस एक बार करें, कोई 2 टर्मिनल जोड़े या तीनों टर्मिनल जोड़े तो क्या होगा? पहले हम कोई भी एक टर्मिनल जोड़ दें, कोई भी एक, इसको जोड़ेंगे बाकी को खाली कर देंगे, इसको जोड़ देंगे बाकी को खाली कर देंगे, या इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो या तीनों को जोड़ो। सोचो, दिमाग लगाओ। दोनों को जोड़ेंगे तो वो तीसरा टर्म तो अपने आप मिल जाएगा ना सर। ई बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ई सी तो वैसे ही रहेगा। अगर इनको जोड़ दें तो इन्होंने तो कनेक्ट हो जाएगा। वो तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो अच्छा, हम अगर इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो तीनों कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर हम बी और सी को जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें तो क्या तीनों कनेक्ट नहीं हो रहे? एमीटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, तो उसमें तो करंट आना चाहिए। एमीटर को तो लेना चाहिए। एमीटर तो एमीटर को जरूरी है। बेस से सैंडविच किया है, बेस मेन चीज बेस। सपोज आप मान लीजिए इसको इग्नोर कर दो, ये पीबी हो गया। अब सोचना है, आप तीसरी तरह सोचिए, ये वाला कनेक्शन क्यों नहीं होगा? दिस कनेक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि दोनों एक ही समय के अंदर, ठीक है, एक ही समय के अंदर, इसलिए द मोस्ट कॉमन कनेक्शन विल बी 1 and 2। दिस इज नॉट क्लियर। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। ये बेसिक चीजें समझानी जो होती है, जहाँ से एमिशन हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, वो स्टार्टिंग रीजन होगा, यानी इनपुट रीजन होगा और यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। समझना इस बात को, इनपुट एंड आउटपुट वी हैव 2-3 टर्मिनल्स connected in 2 ways. First way is EB and second way BC, right? Input region and output region. अब बात करो किस तरह से कनेक्शंस करेंगे, किस तरह से हम इसकी बाइसिंग बनाएंगे। So now remember the definition of the transistor. It has low input resistance and high output resistance. इसको फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे? इसको फॉरवर्ड बायस में, इसको ई बी को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायस कर देंगे और ई बी रिवर्स में। इसको रिवर्स बायस कर देंगे। ठीक है, इसको फॉरवर्ड कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। क्या हम इनकी बैटरी को इंटरचेंज कर सकते हैं? क्या इनपुट को रिवर्स बायस कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट लैब में करो, कुछ भी करो, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि यू कनेक्ट द डिफरेंट टर्मिनल्स। कोई करंट मिलेगा ही नहीं तो क्यों करना? क्यों करना नहीं? करेंगे तब पता चलेगा कि मिलना कि नहीं मिलना, राइट। हम ये सोचना है, ये सोच के नहीं काम करना है कि तो होगा ही, इसलिए अपने काम किए ही नहीं। काम करो, उसका आउटपुट क्या मिला दैट डिसाइड। समझा ना? कोई भी एक कंपटीशन होता है, आप लोग इस बात को सोच के उसका फॉर्म नहीं भरते हो, ये तो हमसे नहीं होगा। इस कंपटीशन को हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, इस एग्जाम को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये सोच के आप लोग वहीं बैठ जाते हो। फिल द फॉर्म, appear in the exam and then come to the point, come to the result, decision. यहाँ कनेक्शन आपने किया नहीं, तुरंत बोल दिया कुछ हो गई नहीं, है ऐसा तो नहीं। यू जस्ट नीड द कनेक्शन। आप कनेक्शन देखो ना, लैब है, लैब के अंदर कनेक्शन करो,
ये रिवर्स बायस में भी हो सकता है कनेक्शन, ये बायस में हो सकता है। आपको केवल वो स्टडी नहीं करनी जो किताब में लिख दी गई है, आपको वो भी स्टडी करनी है जो किताब में नहीं दी गई है। एवरीथिंग शुड नॉट रिटन इन द बुक। इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर को भी हम अगर लिखना चाहेंगे तो यू नीड अ बुक, नॉट ए चैप्टर। हर कॉन्सेप्ट को लिखना है तो हर टॉपिक पर एक किताब लिखी जा सकती है। सो सेम फॉर हियर, बुक में आपको दे दिया गया इट इज इन द फॉरवर्ड बायस, इट इज द रिवर्स बायस एंड स्टूडेंट स्टार्ट स्टडीइंग बाय दिस मैनर। They don't think what will happen if it is in the reverse bias, it is in the forward bias, or what will happen अगर दोनों को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दें और दोनों को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर स्टडी। ठीक, एक साथ दिया जाता है 6 महीने सेमेस्टर में 6 महीने मिलते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 10 घंटे तो होते हैं स्टडी के लिए, होते नहीं होते 10-12 घंटे, 18 घंटे भी पढ़ते हैं तो सुना है, ओवर द नाइट स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? जुनून, स्टडी को जुनून बना, इंटरेस्ट। आपको याद है कोई 10 साल पहले आपने क्या पढ़ा था किताब में? यू हैव एनी आइडिया, मेमोरी अबाउट 10 साल पहले आपने किसी किताब में कुछ पढ़ा होगा? याद है? 5 साल पहले याद है क्या पढ़ा? इंग्लिश की पोएम थी, वो आपको याद है? और आपको बेटा? अच्छा, स्टोरी। 10 साल पहले कहीं घूमने गए हो, 5 साल पहले कहीं घूमने गए हो, याद है? याद है? वो क्यों? इंटरेस्ट रहता है, यू एंजॉयिंग दैट ट्रिप, यू एंजॉयड दैट ट्रिप। आपने उस ट्रिप को आनंद के साथ ग्रहण किया, आप गए उस ट्रिप पर। सेम फॉर दिस ट्रिप। अगर आप अपनी स्टडी को, अपनी क्लास को, अपने अध्ययन को आनंद के साथ अगर करोगे, यू जस्ट एंजॉय योर स्टडी, यू जस्ट एंजॉय द फिजिक्स, यू हैव द लॉट्स ऑफ मेमोरी फॉर लॉट्स ऑफ ईयर। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप एंजॉयफुल स्टडी करोगे तो वो याद रहेगा। वो ट्रिप आपको इसलिए याद है कि यू आर फुल्ली डिवोटेड, यू कंप्लीटली मर्ज इन दैट फिनोमेनन, दैट कॉन्सेप्ट। आप क्लास में बैठे हो, टोटली मर्ज हो जाओ अपनी स्टडी की ओर, तो आप देखेंगे कि 25 साल बाद भी आपको याद होगा कि हमारे समय कुछ पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि हम आई एम टॉकिंग अबाउट द सम इमेजिनेशन, वी हैव दीज पीपल्स, वी हैव दी renowned peoples, they have the information for their study time। हमारे वित्त अधिकारी महोदय हैं यूनिवर्सिटी का, उनको हर वो स्टडी याद है जो उन्होंने अपने यूजी पीजी में की थी। सो आपको भी याद हो सकती है अगर आप एंजॉय के साथ, अगर आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ स्टडी करोगे। मतलब आपके यहाँ से घुसे, आपके दिमाग से कोई स्टडी अंदर गई और वो पूरे जहन में बैठ जाए, सो आपको वो स्टडी कभी भूल नहीं सकती, राइट? ऐसे स्टडी करना। तो डोंट थिंक अबाउट विच वाज बुक, यू थिंक विच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक। एस सी वर्मा साहब आए थे कुछ दिन पहले, नाम सुना होगा आदरणीय एस सी वर्मा साहब का, सबने सुना होगा, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है सर के। उनकी भी यही लाइन थी कि हम वो पढ़ते हैं जो किताबों में दिया होता है, बट उन बातों को भूल जाते हैं विच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक। एक पेज के साथ कई छोटे छोटे ऐसे पेजेस होते हैं जो हम नहीं खोल पाते हैं, राइट? या उसको किताबों में देना संभव नहीं है, वो आपके दिमाग से पढ़िए और सोचिए। ऐसा नहीं कि 4 तरह के कनेक्शंस हुए होंगे ना, वी हैव ओनली 2 कनेक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। लेकिन आप सोचिए कि उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या रहे होंगे कि दिस इनपुट रीजन should be connected as forward bias as well as reverse bias। ये भी कनेक्शन क्या हो सकता था, रिवर्स बायस as well as forward bias। तो क्या कंडीशन बनी होगी? There are 4 types of the connections: forward bias, reverse bias, forward bias, forward bias।
reverse bias and reverse bias, forward bias. Four combinations, four types of biasing associated with the transistor: forward reverse, forward forward, reverse reverse, reverse forward. Clear? First indicate the input region, second one indicate the output region. Yani this line for the emitter base junction and this line for the base collector junction. Check. Four possible way of the connection, four possible combination of the connections. के एमिटर जंक्शन इनपुट फॉरवर्ड हो सकता है, आउटपुट रिवर्स हो सकता है. इनपुट फॉरवर्ड में भी हो सकता है, आउटपुट फॉरवर्ड कनेक्ट हो सकता है. इनपुट रिवर्स में कनेक्ट हो सकता है, आउटपुट रिवर्स में, एंड इनपुट रिवर्स एंड आउटपुट फॉरवर्ड. ये चार तरह के कनेक्शंस है, बट वी सिलेक्ट दैट कनेक्शन व्हिच इज मेंशन्ड इन बुक्स. जो हम पढ़ते हैं किताबों में दिया है, सब जगह दिया है कि दिस इज द फॉरवर्ड बायस, दिस इज द रिवर्स बायस. यानी हम केवल इस कनेक्शन को पढ़ते हैं बस, बाकी इन कनेक्शन पे हम ध्यान ही नहीं देंगे. वाई? क्यों नहीं ध्यान देंगे? इस पे ध्यान देंगे. नाउ वी हैव टू कंप्लीट स्टडी. ये जो पार्ट हमने छोड़ दिया है, पहले इसको स्टडी करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. कोई भी कॉन्सेप्ट कब इंपॉर्टेंट होगा? जब उसके साथ के हमें चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि भाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट. तो ये वाला जो कन्फिगरेशन है, ये जो बाइसिंग है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? सोचो, नाटक सोचो, दिमाग में तुरंत कनेक्शंस करो कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि अगर हम इसको फॉरवर्ड से रिवर्स में कनेक्ट करते तो क्या होगा. चलिए, ये तो आपने बहुत से पढ़ा हुआ है, ये हम लोग बनाए थे. दिस इज द एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन, मोस्ट पॉपुलर रीजन एक्टिव रीजन, एंड द मोस्ट एम्प्लीफिकेशन एक्शन इज ऑब्टेन्ड. यानी व्हेन emitter junction is at forward bias and collector junction is in the reverse bias, then the transistor work most significantly in the active region and work as an amplifier, and having the complete definitions, having following the all characteristics we have studied in the definition section. ठीक, ये हो गया FR. When emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias, right? Clear? What should be for this second case? When emitter junction is forward bias and collector junction is also forward bias, तब क्या होगा? सोचो, दोनों फॉरवर्ड में कर दिए तो क्या होगा? करंट फ्लो होता रहेगा. हाँ, कलेक्ट नहीं होगा, है? कलेक्ट नहीं हो पाएगा. कलेक्ट नहीं होगा, करंट फ्लो होता रहेगा, करंट चलता रहेगा. और बताओ बेटा. क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच. ठीक, यानी एक यहाँ का ट्रांजिस्टर का एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा. क्या काम करेगा? करंट फ्लो होगी और उसका सैचुरेशन, इसको दूसरा नाम बोलते हैं सैचुरेशन एरिया. ठीक है. तीसरा पॉइंट, दोनों रिवर्स बायस में हो तो दोनों रिवर्स में है तो पढ़ चुके हो. दोनों रिवर्स हो गए. नो करंट, नो करंट यानी ओपन स्विच. कट ऑफ, कट ऑफ. एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ वन ये रिवर्स हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए तो क्या होगा? कलेक्टर से एमीटर में करंट जाएगा, कलेक्टर से एमीटर में करंट जाएगा. और गौर से देखेंगे कि जो कलेक्टर करंट है नाउ इंडिपेंडेंट. ठीक है. और जो बाइसिंग है वो और रिड्यूस हो जाएगी, यानी लेस एक्टिव रीजन में लगता है, लेस एक्टिव. तो अब उनके पास दो चॉइस थी.
either this one or this one. Two choice. So this is the less active region, this is the highly active region. So this is now set for your study for the applications. तो ये एक इंट्रोडक्शन है about the transistor. What is the definition of the transistor? Block diagram of the transistor, symbol of the transistor, and biasing of the transistor. किस तरह से कनेक्शन हम कर सकते हैं, ये आज स्टडी आप कर चुके हो. कोई क्वेश्चन? महिमा, कोई क्वेश्चन? आरुषि, नीति and Stuti. No correction. मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो समझ में आ गया या तो समझ में आया ही नहीं है. से समझ में आया. आ गया पक्का, कल पूछेंगे. ठीक है. रोज जब भी आप यूनिवर्सिटी आओ, क्लास के अंदर बैठो, दिमाग में रखना आप फिजिक्स में डुबकी लगाने हो. फिजिक्स से आप स्नान कर चुके हो. नाउ यू आर गोइंग टू डिप. ये दिमाग में रखना है. उस दिमाग के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स की स्टडी करना है. ठीक है. ये हम आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो आप पढ़ चुके हो. हम केवल आपको रिवीजन करा रहे हैं. राइट. इसके बाद फिर हम आपका टॉपिक लेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. बट टुमारो वी विल डिस्कस द ऑपरेशन, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स. ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे करंट कंट्रोलिंग डिवाइस को कहा जाता है, वो सब स्टडी कर लेंगे. ठीक है. एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन?